story for the moment. Thank you. And from that breaking development, back to our burning question. Remember, it's been a day of high political activity, a lot of comments that continue to be made against the Sanatan Dharma. Now, in fact, it's a Bihar education minister. He's still a minister. This minister actually berates the Ramcharitramanas. He goes on to say that Ramcharitramanas spreads hatred. As expected, the BJP has launched a full frontal attack against the JDU, the RJD combined, and against this Bihar minister. They are asking, is there a pattern? Is there a pattern, and why is Sanatan Dharma has right now become a favorite punching bag? How can an elected representative really do this? And to top of it, when you ask the chief minister of the state of Bihar about this comment that has been made by his minister, he says, I'll check. I absolutely have no knowledge about it right now. So clearly there are questions that Nitish Kumar has to answer. This Bihar education minister has to answer, who's from the RJD quota. But more importantly, the big question, has it become just a pattern to attack Hindu gods, to attack Hindu texts, and why? Why is that happening? Let's quickly bring up the entire story, the reaction of this Bihar minister, his defense, and then we debate. आज से करीब 7 साल पहले 15वीं 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजनीय नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। विवादास्पद आप कह रहे हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ? नफरत का ग्रंथ आपने मैंने नफरत का ग्रंथ नहीं कहा, नफरत का अंश कहा है। उस ग्रंथ में नफरत के अंश हैं। मेरा ये कहना है कि जो भी मैंने बात कही है, संपूर्ण ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं है, ग्रंथ के उस अंश पर टिप्पणी है जो संपूर्ण 85-90% लोगों को शिक्षा से वंचित करता है। Ladies and gentlemen, become an easy target. And this elected representative who's actually taken the oath of office, he should be secular. But why do we hear a comment like this? Is there going to be action against him or not? And why today you have Nitish Kumar completely clueless? Those are a lot of questions on top of our mind and your mind. And let's ask those questions to our panel of guests that joins us. Professor Guru Prakash Paswan is national spokesperson of the BJP. Manish Barrier is a political analyst. I do see Dushyant Nagar, political analyst. Anil Kumar Sahni ji, who's a former MP and the MLA of the RJD. And I do see Anupriya, who's a spokesperson of the JDU. Let's get kick-started with Anil Kumar Sahni from the RJD. And before, in fact, we begin this debate, we also have Dr. Sanjay Kumar Jaiswal, who's the president of the BJP Bihar and member of parliament from the Lok Sabha, who's also joining us live right now. So with the permission of all our guests, let's quickly cut across to him and understand what really is happening in Bihar. Jaiswal ji, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, हमें ये बताइए कि क्या अभी एक पैटर्न हो गया है? क्या हिंदुइज्म एक इजी टारगेट है? कुछ समय पहले नफरत की जमीन हमने सुना और अब नफरत की किताब। चंद्रशेखर जी को एक तो ज्ञान की कमी है। जो दोहा वो उद्धृत कर रहे हैं, वह भी दोहा को वो गलत ढंग से उद्धृत कर रहे हैं। वो दोहा जो है वो है एक आपस में वार्तालाप है काक भुषुंडी अर्थात कौवा का गरुड़ के साथ, और वह यह कह रहा है कि मैं अर्थात कौवा जो है मैं हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहू सुनी खगननाथ हृदय मम देहु अधम जाति में विद्या पाए भवहु जथा अहि दूध पियाए। इन्होंने ठीक इसका उल्टा कर दिया। वह जो कह रहा था कि मैं, उसको इन्होंने मैं कर दिया, और उसके बाद ये जो कौवा और गरुड़ का वार्तालाप है और उसके बाद का चौपाई वो पढ़ना भूल गए। अगर उसके बाद की चौपाई वो पढ़ते तब उन्हें समझ में आता कि शिक्षा का क्या मतलब है। इसमें उन्होंने उसकी अगली लाइन जो है वह है मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति गुर कर द्रोह करऊं दिन राति अति दयाल गुरु स्वलप न क्रोधा पुनि पुनि मोहि सिखाओ सुबोधा। अर्थात अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कौवा जाति के
कुजाति के होने के बावजूद कारण मैं गुरु से द्रोह करता था। फिर भी गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध मेरे ऊपर नहीं आता था और वह हमेशा मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। तो इसके अगले ही लाइन में उत्तम ज्ञान की शिक्षा की बात भी लिखी हुई है। और ये काग और गरुड़ के बीच के जो वार्तालाप है उसको जानबूझ करके सामाजिक विद्वेष पैदा करना, समाज में हिंदुओं के प्रति जो इनकी एक मानसिकता है कि चूंकि यह खुद मधेपुरा से है और वहां पर एक अच्छा खासा चंक अल्पसंख्यक मतों का है और केवल उनको वो प्रभावित करने के लिए इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। और सबसे मुझे आश्चर्य लगा, माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मुझे यह बात मालूम नहीं है। यह एक हिंदुस्तान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनके यहाँ BSES एग्जाम देने वाले बच्चों पे लाठीचार्ज हो जाता है, वो कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। जिनके यहाँ कल बक्सर में पुलिस रात भर किसानों पर डंडे बरसाती है, मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। उनके शिक्षा मंत्री इस तरह का वक्तव्य दे करके पूरे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी कह रहे हैं हमें मालूम नहीं है कि जब से महागठबंधन की सरकार आई है तो संजय जी आपको क्यों लगता है कि ये सब समाज को बांटने की कोशिश है? और जिस तरह मैंने आपसे सवाल किया कि क्या ये सिर्फ बिहार तक सीमित है, क्योंकि हम एक पैटर्न अगर देखें बीते कुछ सालों में लगातार इस तरह के कमेंट्स बार बार सामने आते हैं और जब इस तरह के कमेंट्स को सामने मीडिया लाता है तो उनसे कहा जाता है कि आपने कॉन्टेक्स्ट ठीक से नहीं समझा। किसी भी इस तरह के व्यक्ति के ऊपर, नेता के खिलाफ क्या कभी कोई कार्रवाई हुई? और मैंने अभी जगदानंद सिंह जी का बयान के बारे में आपसे बात की, नफरत की जमीन, इस तरह का उन्होंने बयान दिया था राम मंदिर को लेकर, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? बिहार में एक कहूं तो एक जानबूझ के समाज सौहार्द बिगाड़ने का, हिंदुओं को नीचा दिखाने का एक पूरा प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है। आप सबको ध्यान होगा कि भागलपुर में जिस तरह से एक महिला की हत्या हुई और चूंकि पर वह हत्या इतनी निकृष्टतम हत्या थी और एक खास समाज के द्वारा किया गया था, तो उस पूरे मामले को दबा दिया गया। सरकार की तरफ से ये जानबूझकर किया जा रहा है कि हिंदुओं को अपमानित करो, हिंदू प्रताड़ित रहेंगे तो हिंदू मेरे कंट्रोल में रहेंगे। और यह सोच जो है, यह नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की जो सोच है, उसी सोच को शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं। यह शिक्षा मंत्री अगर रामचरितमानस के प्रति इस तरह का ओपिनियन रखते हैं तो आप समझ सकती हैं कि बिहार के शिक्षा की कितनी कुव्यवस्था है। अपने विभाग का काम करते नहीं है। शिक्षा हमेशा से जदयू के पास ना और आज राजद के पास है। 5 साल लेट मगर यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, कोई भी सेशन ठीक से नहीं चल रहा है। बिहार एकमात्र प्रदेश है जहां 1300 करोड़ बच्चों के गार्जियन दूसरे प्रदेशों में भेजते हैं केवल बच्चों की शिक्षा के लिए। बिहार में कोई शिक्षा ये बात आपकी सही है। संजय जायसवाल जी, आपसे आखिर में 2 सवाल पूछना चाहूंगी। सर, समय थोड़ा कम है क्योंकि और भी हमारे पास गेस्ट हैं, तो आपसे आखिर में 2 सवाल। सबसे पहला ये कि ऑपोजिशन यहां पर ये कहता है कि बीजेपी जानबूझकर इस तरह के मामले उठाती है क्योंकि बीजेपी इस समय घबरा रही है क्योंकि 40 लोकसभा सीट बिहार से आती हैं। दूसरा सवाल यह है कि एक मंडल वर्सेस कमंडल राजनीति करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि सनातन धर्म के खिलाफ जो इस तरह के बयान दिए जाते हैं, क्या वो किसी भी तरह ऑपोजिशन को मदद कर सकते हैं? पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी ने यह नहीं कहा, यह आप लोग जानबूझकर हिंदुओं को छेड़ने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए कहते हैं। यह जदयू और राजद की एक प्रायोजित साजिश है। और खास करके जब वह 2 उपचुनाव हार गए, गोपालगंज और कुर्नी का, उस समय से ये लोग और जातीय विद्वेष बढ़ाने में लगे हुए हैं। और उसी का यह नतीजा है कि जानबूझकर हिंदुओं को नीचे दिखाने के लिए, हिंदुओं में आपस में एक वैमनस्य पैदा हो, इसके तहत ही शिक्षा मंत्री बिल्कुल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से आज्ञा लेकर के यह प्रायोजित भाषण है। आप जब नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि यह कोई सड़क चलता वक्तव्य नहीं है। यह एक सोचा समझा प्लान्ड वक्तव्य है जिससे कि बिहार में जातीय विद्वेष फैले, हम फिर से
90 के उस दशक में पहुंच जाए जहां जाति के नाम पर हत्याएं हो, जाति के नाम पर लूट हो। और यह वह समझते हैं कि आज के जो युवा है, आज का जो वर्ग है, वह इनके ट्रैप में फंसेगा। आज के युवा को समय पर परीक्षा चाहिए, वह 3 साल में पास करना चाहता है, नौकरी चाहिए। न जाने वो कलम कहाँ चली गई जिससे वो 10 लाख नौकरी दे रहे थे तेजस्वी जी, अचानक वह कलम खो गई है। आज के मुद्दों से नौकरी की बात करेंगे संजय जायसवाल जी, तो ऑपोजिशन पूछेगा देश भर में कितनी नौकरियां दी है, लेकिन आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे सर उठाए हैं और इस पर एक बहुत बड़ी और व्यापक डिबेट होनी चाहिए। समय की थोड़ी कमी है संजय जायसवाल जी, लेकिन आपने हमसे बात की उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। एकदम अब चलते हैं अपने पैनल के पास, who've been very patiently waiting and I thank you for your patience. Let's have them on the screens. Professor Prakash Paswan, also Manish Bariyar, Dushyant Nagar, Anupriya, Anil Kumar Sahni. साहनी जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रामचरितमानस को नफरत की किताब बताते हैं, क्या आप उनके इस कमेंट से एग्री करते हैं सर? देखिए, नफरत की जहां तक वो बात है, उन्होंने मनुवाद के संबंध में बोला है और कुछ अंश पर उन्होंने अपना जो है सो वक्तव्य जारी किए हैं कि जिस प्रकार से वो बोले भी हैं कि जिस प्रकार से मांझी जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया और देश के राष्ट्रपति जो हमारे गोविंद जी थे उनको भी नहीं घुसे, उसके संबंध में कुछ इशारा किए हैं। मगर राम का नाम जो है सो घट-घट में है और राम सभी के बीच में है। राम जो है सो सभी जाति, सभी धर्म, वो ये कहते हैं कि इस तरह की किताबें कास्ट रिलेटेड हेट्रेड फैलाती हैं। निषाद राज के साथ और निषाद राज ने उनको पार उतारा, तो राम तो घट-घट में आस्था का प्रतीक है। अच्छा, आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर अगर चंद्रशेखर जी की बात से अग्री नहीं करते, मुझे एक और बात बताइए। नफरत की जमीन, ये कमेंट आपने सुना था सर? नफरत की जमीन, नफरत की जमीन कहां से नफरत की जमीन होता है? पूरा बयान दिया। धार्मिक उन्माद में राजनीतिक में नहीं लाना चाहिए, राजनीतिक में इसको लाना ही नहीं चाहिए था। कि जिस प्रकार से राजनीति किया जाता है धर्म के नाम पर, तो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कौन कर रहा है सर धर्म के नाम पर राजनीति? कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है धर्म का राजनीति। यही सा ना हो रहा है, जैसे हम जिस प्रकार से आज राम घट-घट में है, राम सभी के दिल में है, जिंदा रहता है उस पर भी राम का नाम और मरने के बाद भी राम राम सत्य बोला जाता है। तो राम तो हमारे सनातन धर्म में घट-घट में है और लोग उसे मानते हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, हम लोग भी आस्तिक हैं, कोई नास्तिक नहीं है। अच्छा देखिए, अब ऐसा है ना साहनी साहब, आप लोग टेलीविजन पर आ जाते हैं, आप ही के नेता है ना जगदानंद सिंह जी, उन्होंने क्या कहा था? नफरत की जमीन पर बना है राम मंदिर। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई सर? आज एजुकेशन मिनिस्टर रामचरितमानस को लेकर इस तरह की टिप्पणी करते हैं और वो अभी भी मंत्री बने हुए हैं। उनके कहने का तात्पर्य को समझिए। उन्होंने कहा कि राम तो घट-घट में है, मगर नफरत का जहां पर मस्जिद बना, चाहे उसका जो हंगामा हुआ, कोर्ट से डिग्री हुआ, इसके और कहना है। क्या राम एक ही मंदिर में बैठे हुए हैं? क्या और सब मंदिर है कि नहीं भारत में? I know Guru Prakash, you want to come in, but just give me 30 seconds क्योंकि I want to take this to Anupriya. We've heard the RJD. Let's also get the JD on the screen. Anupriya and also Dushyant on the screen, please. Anupriya, आप जनता दल यूनाइटेड से हैं. Tell me something. Do you agree with what the Bihar Education Minister has said? तो हम आपके चैनल के माध्यम से जो बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, मुझे लगता है कि उनको पद पे है, उन्हें इस तरह की बयान नहीं देनी चाहिए क्योंकि अनुप्रिया, आप अपने आप को आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बताइए। मेरी आवाज आ रही है अनुप्रिया? जी मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। हाँ, मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से पद पे बैठ के शिक्षा मंत्री जी ने ये बात कहा है, मुझे लगता है उनको अपनी पद की गरिमा बनाए रखते हुए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया वो सीधे सीधे वो धर्म की, हिंदू धर्म को आघात पहुंचाती है और
जनता दल यूनाइटेड और मैं खुद भी इस अच्छा, बयान तो से मैं आप सहमत अनुप्रिया नहीं इस रखती कमेंट से हूँ। अग्री नहीं करती। मुझे ये बताइए, अभी भी चंद्रशेखर जी क्या मंत्री बने हुए हैं या इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है? मैम, ऐसा है कि मैं यहाँ पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठी हूँ और कार्रवाई करना ही करना यह मुख्यमंत्री जी के कार्य क्षेत्र के अंदर में आता है। इससे किसी भी तरह का टीका टिप्पणी मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैं आप कुछ देर पहले हम लोग संजय जायसवाल जी को मैं सुन रही थी, उन्होंने पर वो तो आप ही की पार्टी के हैं ना, जनता दल यूनाइटेड के ही है ना। नीतीश कुमार आप ही की सरकार है। नीतीश कुमार जी से जब मीडिया ने आज पूछा, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है, हम पता करते हैं। बक्सर में क्या हुआ हमें अभी पता नहीं है। आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या बोला हमें पता नहीं है। तो मुख्यमंत्री साहब कर क्या रहे हैं? मुझे लगता है कि उसका जवाब भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी पद पे बैठे व्यक्ति के लिए कार्रवाई करने के लिए एक समय होगा जहां महागठबंधन के सारे नेता बैठेंगे, और एक जो कार्रवाई की प्रक्रिया अगर होगी तो वो मुख्यमंत्री जी के अधीन है, वो हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। पर मैं संजय जायसवाल, आप फंस गई हैं अनुप्रिया, इस मामले पर आप फंस गई हैं। आपने क्या जगदानंद सिंह जी के खिलाफ किसी तरह का बयान दिया? गुरु प्रकाश, द आंसर इज नो। Whether they have acted against the education minister, the answer again, Manish, is no. And Dushyant, I do not know whether you will support an Anupriya today or you will support a Sahni ji today. But Guru Prakash, where is this heading? And like I said, nafrat ki zameen se nafrat ki kitab. What kind of politics is this, Guru Prakash? Deepti, I am representing my party here. But before that, if you allow me to respond to Sahni ji and Anupriya ji, मैं बिहार से आता हूं, मैं बिहार वासी हूं, और बिहार वासी होने के नाते हम आज शर्मसार हैं। इसका कारण है, ये बिहार सीता की भूमि है, ये बिहार राजा जनक की कर्म भूमि है। एक बिहार वासी होने के नाते बिहार के शिक्षा मंत्री का रामायण पे ये टिप्पणी करना सारे बिहारियों को शर्मसार करता है। I want to remind my friends in the Mahagठबंधन, Rashtriya Janata Dal United, they tend to follow Mr. Ram Manohar Lohia. Please go and read about Ram Manohar Lohia ji. Ram Manohar Lohia ji said, we should have a Ramayana Mela in Chitrakoot. You say that you are the well-wisher of the Dalits, the marginalized and tribals. I must tell you that there are different versions of Ramayana for the Bhils, the Mundas, the Santals, the Gonds, the Soras, the Korkus, thousands of other tribals. I must also remind you that Maharshi Valmiki, who is a Dalit, he authored the most authentic Ramayana. You have insulted the sentiments of the Valmiki Samaj, of the Hindu Samaj, of the country today. Who is going to apologize? Who is responsible? मैं बोलना चाहता हूं सहनी जी को, Guru Prakash, let's ask if Anupriya wants to apologize on behalf of the education minister, and दुष्यंत क्या माफी मांगेंगे? अनुप्रिया माफी मांगेंगी? आपने ये बताया कि जनता दल यूनाइटेड इस कमेंट से अग्री नहीं करती, तो आप माफी मांगेंगे सार्वजनिक तौर पर? मुझे लगता है कि गुरु प्रकाश जी से मुझे एक सवाल और भी पूछना है कि मैं याद दिलाऊंगी कि संजय निषाद जो यूपी में आपके गठबंधन में साथी हैं, और उन्होंने चुनाव, अरे आप सवाल बाद में पूछिएगा ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए अनुप्रिया। आपने अभी यहाँ पर टेलीविजन चैनल पर ये बोला 2 मिनट पहले कि हम इस कमेंट से अग्री नहीं करते, तो आप माफी मांगिए। बिल्कुल, आप बोलिए कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा हम उससे बिल्कुल अग्री नहीं करते, हम माफी मांगते हैं और इनको हटाया जाएगा, स्टेटमेंट दिया है, मामला खत्म हो जाएगा ना अनुप्रिया? मैं एक बात कहती हूँ, महागठबंधन देखिए साफ पता चल जाएगा कि आप किस साइड हैं। आप क्या रामचरितमानस के खिलाफ जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है आप उनके साथ हैं, या जिस तरह गुरु प्रकाश आपसे कह रहे हैं ये आपका टेस्ट है, ये नीतीश कुमार का टेस्ट है? मुझे अगर बोलने देंगी, नहीं मुझे बोलने देंगी, मैं बोल लूंगी, उसके बाद फिर मैं सारे सवालों का मैं जवाब दूंगी। मेरा एक सीधा सवाल है, हाँ, लेकिन सवाल का जवाब दीजिएगा। बीजेपी माफी, हाँ ठीक है, बीजेपी के हमारे नेता या प्रवक्ता माफी मांगने की बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री से, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी संजय निषाद यूपी में उन्होंने कहा था कि प्रभु श्री राम के जन्म पर उन्होंने सवाल उठाया था कि प्रभु श्री राम जो है वो दशरथ के पुत्र नहीं है, वो आज भी यूपी में आपके गठबंधन में साथी है, सहयोगी दल है आपके। आपने उनसे माफी मंगवाया, क्या आपने कार्रवाई की? अरे आप तो बीजेपी के साथ नहीं है ना मैडम? अनुप्रिया जी, आप तो इस समय बीजेपी के साथ नहीं है।
आप अपनी बात बताइए ना, बीजेपी पर सवाल आप करेंगे वो मैं आपको करने दूंगी, लेकिन आप पहले अपनी बात तो बताइए। आप माफी मांगेंगी फिर दुष्यंत से पूछेंगे। रामचरितमानस का जो ये पूरे इसमें प्रभु श्री राम के बारे में उसमें इसमें विवरण किया गया है, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु श्री राम के जन्म पे सवाल उठाता है उनके साथ में बीजेपी है, और अगर ये हमारे साथ में नहीं है यहाँ, देखिए यहीं पर आप दोबारा फंस जाती है ना। आप टीवी पर आकर बयान दे देते हैं कि हम इससे अग्री नहीं करते, आपसे पूछा जाए माफी मांग लीजिए तो आप मनीष माफी नहीं मांग पाते हैं ये लोग। मनीष आपके पास आती हूँ, जस्ट टू दुष्यंत क्विकली, आप माफी मांगेंगे? हमारे नेता महागठबंधन चला रहे हैं बिहार में, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस समय यात्रा पर हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं पता कि उनके अपने ही कस्बे में क्या चल रहा है इस समय। दुष्यंत आपने भी अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। दुष्यंत आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं ये कहना चाह रहा था मैडम, देखिए हमें विषय की गंभीरता को देखते हुए पूरी निष्पक्षता के साथ बात को आगे बढ़ाना चाहिए। पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरी रामचंद्र जी में, रामचरितमानस में गहरी आस्था है और मैं माननीय मंत्री जी के कथन से सहमत हूँ। फिर मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मैंने ग्रंथ के विषय में कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने एक अंश के विषय में बोला है। तो वो दो बातें जो उन्होंने कही, मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता के समक्ष बातों को इसको क्या कहते हैं ना, इसको कहते हैं कि आप संदर्भ की बात करने लग जाते हैं। आप मुझे ये बताइए दुष्यंत, क्या किसी भी राजनेता में इतनी हिम्मत है कि वो किसी और धर्म के टेक्स्ट को लेकर इस तरह की बात कह सके? दुष्यंत सीधा सा सवाल है, आप जब इसको क्वालिफाई करने लगते हैं ना, यही लगता है कि दाल में काला है। अगर आप इस कमेंट से दुष्यंत अग्री नहीं करते अनुप्रिया की तरह, तो आप माफी मांग लीजिए, मामला खत्म हो जाए। मेरा क्यों मांग लूं मैं माफी? कोई हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहेगा, मेरा उससे क्या लेना देना भाई? ये आपने अच्छी बात भाई, बहुत। आप कांग्रेस समर्थक है ना? मेरा क्या लेना देना? आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं? जानता तक नहीं हूँ। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार को मुद्दा आधारित समर्थन है, वो अपनी जगह है, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के हित करने के लिए। अरे तो इस मुद्दे पर समर्थन है आपका? नीतीश कुमार जी का समर्थन करेंगे इस मसले पर? और बिल्कुल हम नीतीश कुमार जी का समर्थन करते हैं। शिक्षा मंत्री, हम आदरणीय तेजस्वी जी का भी समर्थन और शिक्षा मंत्री का, लेकिन हर एक किसी के अनर्गल प्रलाप का हम समर्थन नहीं किया जा सकता। कोई अगर व्यक्ति धर्म के ऊपर थोड़ी ना है, किसी का अनर्गल बयान थोड़ी ना हो गया। मनीष, दिस इज द एजुकेशन मिनिस्टर। नहीं दुष्यंत, आप भी अनुप्रिया की तरह एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि आपसे जब सीधा सवाल पूछा जाएगा कि आप इस कमेंट के साथ हैं या नहीं, तो आप इसे क्वालिफाई करेंगे। बट मनीष, वेयर इज दिस पॉलिटिक्स रियली गोइंग अहेड विद? लाइक आई सेड, इज देयर अ लार्जर पैटर्न हियर टू बिरेट द सनातन धर्म? मनीष, उसके ऊपर आप कोई बात नहीं कर। सो बीजेपी के नेताओं को एक्सपोज करने की मनीष दोहरी चरित्र लेके वो बैठे हैं। सो कैन यू हियर मी? आप, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता से आप पूछना चाहिए। अनुप्रिया दुष्यंत आपके पास आऊंगी दोबारा। मनीष ने अभी तक बोला नहीं है, उनके पास चलते हैं। लेट्स लिसन टू मनीष प्लीज। मुझे लगता है कि आपने कहा कि एक्सपोज आप बीजेपी को एक्सपोज कीजिए ना, कि भाई वहाँ दो दोहरी चरित्र है। जब वो यूपी की बात करती है तो वो संजय, अरे भाई आप ही के स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर है मैडम, वो इस तरह का बयान देते हैं, आप टेलीविजन पर आकर बोलती है देखिए हम इस कमेंट से अग्री नहीं करते। चीफ मिनिस्टर कहते हैं हमें कुछ पता नहीं। मैं आपसे बोलती हूँ आप माफी मांग लीजिए और बोलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो आप मना कर देती हैं। तो एक्सपोज तो आप होंगी ना, नहीं कर सकती बीजेपी को। अब आप सुन लीजिए ना मैडम, दूसरों को भी सुनिए। आप जिस तरह आरजेडी के शब्दों को इस समय सुन रही हैं बार बार, जगदानंद सिंह जी कहते हैं नफरत की जमीन, सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह के बयान देते हैं जो बेहद आपत्तिजनक है, लेकिन आप सब कुछ खामोशी से सुन रहे हैं। तो अनुप्रिया जी, यहाँ पर दूसरों की आवाज भी सुनिए मैडम, सुन लीजिए उनको, 1 मिनट सुन लीजिए। मनीष, see there is a larger pattern for sure. Am I audible to all of you? Yeah, am I audible? Yes Manish. Yeah, so there is a pattern for sure. If you look at, I think Mahagathbandhan has been under pressure after they lost these last 2 elections, right? Especially Gopalganj elections, you will see there are 2 very interesting things happening in Bihar politics.
One is because they lost elections. There is a caste census going on, right? And they understand that more division needs to be done, and you will see this pattern moving up. I see Rahul Gandhi's Yatra, where they feel this Mahagathbandhan that they might lose in elections. In Lok Sabha election, they might lose Muslim votes, so they have to polarize on caste lines. That is one. And second, some of the leaders out there in Bihar, like especially people who are looking at Bihar politics, so people like RCP Singh, Chirag Paswan, even Prashant Kishore, they are putting pressure on these political parties, especially the first two people, right? They are getting traction among backward caste, and they normally kind of support NDA. And I think all these statements, you cannot dismiss it like this. RJD president speaking about Ayodhya as the Nafrat ki Zameen, and then the education minister, these are not lighter statements. These are with design, but it is very unfortunate. Like anybody can make such unforgivable statements against Hindu religion. I think they would not have dared to speak anything about any other religion. Manish, you just tell me whether they will you dare have to speak underscored the something fact about that other there is a religions. pattern. They I have want the to know guts. where is the I action, don't think because they have Guru the guts to Prakash, do we that. have not seen an action that's happened. Sani साहब, आप ये कहते हैं कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं, आप सारे रिलीजन्स को एक साथ लेकर चलते हैं, लेकिन भेदभाव तो आप खुद ही अनुप्रिया क्रिएट कर रहे हैं ना। और अगर ये व्यक्ति चंद्रशेखर जी अभी भी आपके एजुकेशन मिनिस्टर अनुप्रिया जी बने रहेंगे, तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आप भगवान राम को क्या राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही हैं? आई थिंक वॉइस चला गया था। मुझे लगता है कि मैं यहाँ अधिकृत पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हूँ। मैं पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठी हूँ मैडम। मैं यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोलूंगी कि सरकार की जो दायित्व होती है वो उसके बारे में मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि आप जो मैं सवालों को नहीं पूछने दे रही है कि बीजेपी का दोहरा चरित्र क्यों है। अगर वो बिहार की बात करती है तो वो कहती है कि माफी मांगना चाहिए, तो उन्होंने संजय निषाद से माफी क्यों नहीं मंगाया? मेरा एक सवाल है, उसका जवाब मैं चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हैं, आपकी तमन्ना पूरी करते हैं। गुरु प्रकाश को 10 सेकंड देती हूँ इसका जवाब देने के लिए। देन वी नीड टू स्टार्ट रैपिंग अप। गुरु प्रकाश, क्विकली, double standards by the BJP is what the JDU is alleging. You are smiling, but you will have to answer. नहीं, देखिए, मैंने I have patiently listened to my sister from the Janata Dal United, and I'm happy that she distanced herself from this बयान. But I want to tell her, आज पूरे देश के हिंदुओं को पता है, पूरे दुनिया के हिंदुओं को पता है कि हमने प्रतिज्ञा ली थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, और वो भव्य राम मंदिर बन करके हमारे सामने खड़ा हो रहा है, और उस राम मंदिर के परिसर में भगवान वाल्मीकि का भी मंदिर बन के खड़ा हो रहा है। तो आपसे हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। यू शुड लर्न अबाउट रामचरितमानस। राम के चरित्र को पढ़िए, राम के चरित्र को अपने मन में बिठाइए, यही है रामचरितमानस। रामचरितमानस पे इस प्रकार से आलोचना करके आपने 80 करोड़, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, अनुप्रिया बहन मैं बीच में नहीं बोल रहा था, अरे मैं बीच में नहीं, थोड़ा सुनने का नहीं, दीप्ति मैं ऐसे डिबेट नहीं करता, दीप्ति मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। दीप्ति आपने मुझे चांस दिया था, दीप्ति नहीं, अनुप्रिया जी, आप सवाल पूछ रही हैं तो सुनेंगी तो सही ना अनुप्रिया। अनुप्रिया, आपने भी सवाल मैंने कुछ पूछा, जवाब कुछ और दिया। अनुप्रिया, अनुप्रिया प्रश्न गुरु प्रकाश को उनका जवाब खत्म करने दीजिए। प्रश्न पूछा है, 10 सेकंड है बस, देन वी नीड टू रैप। थैंक यू सो मच। हाँ, प्लीज, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी सिस्टर। वंस यू आस्क अ क्वेश्चन, प्लीज हैव द पेशेंस टू लिसन टू द आंसर्स एज वेल। पूरे दुनिया भर के हिंदुओं ने देखा है कि राम जन्मभूमि पे वो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। आप लोगों ने तो कांग्रेस के साथ, आप कांग्रेस के गोद में बैठे हैं और आपको शर्म नहीं आती। रामचरितमानस पे बोल करके आपने हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया है। और आप कह रहे हैं, आप अभी बीच में कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी जवाबदेही तय करिए। नीतीश कुमार जी, who is accountable? Nitish Kumar ji, who is responsible? You are the chief minister, and constitutionally you are the head of the council of ministers, of which Mr. Chandrasekhar is a part. Why are you running away from this? आप concept, तात्पर्य। Okay, but you know, Guru Prakash, Nitish Kumar right now Anupriya is on a समाधान यात्रा दुष्यंत, लेकिन वो किस चीज का समाधान निकाल रहे हैं इस समय कि आप देश तो छोड़िए, क्या बिहार भी उनके हाथों से फिसला जा रहा है? और एंड दिस स्टोरी, व्हाई स्ट्राइक एट हिंदू फेथ अगेन एंड अगेन इज अ क्वेश्चन that will be asked to people like Chandrasekhar, to people like Jagdanand, and also to people like Nitish Kumar.
Anupriya and all gentlemen, thank you so much for your time, your wisdom. And we quickly take it across to Shravan, who's carrying ahead this leg of the burning question. Shravan. Well, thank you very much, Deepthi. Top focus right now is what's really happening in the state of West Bengal. Not for the first time, where we have seen wads of cash lying at the residence of